Hello everyone, welcome back in this wonderful session of IELTS Zero to Hero, where I and Vandana Ma'am is there to guide you on the wonderful topics of IELTS preparation, also the grammatical topics. So I am back again, as in my previous session I have already covered the conjunction portion, and I hope that you guys have taken that session, and I hope that's going to be very useful to you. Either it comes to your spoken English or it comes to your IELTS preparation. I hope it's going to be helpful to you in all the manners. And today I'm here with another most interesting topic, and that is of course connectors, because I know once I've done with the conjunction, connectors has to be there, being one of the most essential part of the IELTS cohesion and coherence parameter. Okay, so now let's get started without wasting any further time. So yeah, let's talk about the kind of topics we'll be covering today. Starting off with connectors, of course, I would like to tell you what are connectors, and then contradictory connectors, casual connectors, sequential, illustrative connectors, comparative connectors, conditional connectors. So basically we have multiple sets of connectors that is going to be very essential and prominent when it comes to your IELTS preparation. Also, when it comes to sequencing the sentences and coming up with the proper presentation of the ideas. Okay, now let's get started and let's talk about what exactly a connector is. क्या होता है, what exactly a connector is and how we are going to use them, उनको कैसे use कर सकते हैं, conjunction and connectors अलग अलग कैसे, ठीक है. तो यहाँ पे देख लो, connectors also called linking words, discourse markers or transition words. Basically these are the names that we use with respect to connectors. So what connectors, जिनको हम linking words भी कहते हैं, discourse markers or transition words which we also call them, are words or phrases used to connect sentences, clauses or ideas logically. They help in maintaining coherence and cohesion in writing and speaking. I hope you've got almost 60% of your answers what exactly a connector is. Okay, but अब connector का काम देखो, there are multiple things that you need to be very sure when it comes to connectors. First, it is not only used for linking words, phrases and clauses and the ideas into a logical manner, but also it is used in order to provide a flexibility of your connections in terms of sentences, right? When I talk about flexibility, which is one of the most common term that I usually use either in terms of grammar or in terms of IELTS. फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है जब आप IELTS के एग्जामिनेशन में बैठते हो, जब आप एग्जाम देते हो, what one thing that examiner is looking for, जो आप आंसर दे रहे हो वो सब आंसर दे रहे हैं, ठीक है. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ नॉलेज दैट यू हैव. आपके पास वोकैबुलरी की नॉलेज ज़्यादा होगी, मे बी दूसरे वाले बंदे के पास वोकैबुलरी की नॉलेज कम हो. देयर माइट बी पॉसिबिलिटी. So this is what I'm trying to tell you, is how flexible you are when it comes to your IELTS connectors and conjunction. Also it applies same with the synonyms and vocabulary. ठीक है, अब बात करते हैं कि why am I teaching you connectors. क्यों connectors की बात कर रहे हैं, हमारा and but yet से काम चल ही रहा था, हम तो इसे यूज कर ही रहे थे, then why are we using connectors over here. So देखो, connectors give you a flexibility in diversified ideas, right? कैसे? Now I'll not tell you बहुत ज़्यादा, gradually I'm going to deal with that, but अभी I'm just giving you an idea कि क्यों connectors important है. connectors important है आपकी flexibility के लिए. अब ज़रूरी नहीं है, देखो हर सेंटेंस में जब भी आप एक आइडिया प्रेजेंट करते हो, जब भी आप एक इंटेंशन, एक सिचुएशन, एक सिनेरियो प्रेजेंट करते हो, सो देयर इज मल्टीपल वेज और यू कैन से देयर आर मल्टीपल रीजंस एंड मल्टीपल सिचुएशंस ऑफ मल्टीपल सेंटेंसेस. आप हर सेंटेंस एक सिचुएशन में रख के नहीं प्रेजेंट करते हो, या हर सेंटेंस की एक ही मीनिंग नहीं होती है. अगर वो एक ही मीनिंग होगी तो डेफिनेटली आपको उसको मल्टीपल टाइम्स नहीं प्रेजेंट करना पड़ेगा. लॉजिक, ठीक है. तो बात यहाँ पे होती है कि मैम जब हमारे सेंटेंसेस में डिफरेंट मीनिंग्स
accumulate होते हैं, या if we need different sentence types, if we need different reasons or circumstances in order to provide a certain situation, then how connectors are useful? Connectors are, there are some connectors which are made with respect to a particular scenario. जैसे कि कंजंक्शन जब मैंने पढ़ाया था आपको, मैंने बताया था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. तो कंजंक्शन तो हम बहुत ज़्यादा प्रिसाइज रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू द क्लॉजेज वी आर यूजिंग, sorry, with respect to the types of sentences we are using, whether it is a compound sentence, simple sentence or complex sentence. ठीक है, उसमें जो हमारे पास इंक्लूजन होता है फॉर लाइक इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज का, उनको अगर हम साइड रखते हैं, तो इफ़ आई टॉक अबाउट कनेक्टर्स, कनेक्टर्स गिव यू फ्लेक्सिबिलिटी. कंजंक्शंस हमारे पास बहुत मिनिमल है. ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, फैन बॉयज यू नो. ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक पर्टिकुलर सिचुएशन को प्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, फॉर एग्जांपल रीजन, टाइम, कंडीशन, राइट. कोरिलेटिव कंजंक्शन अगेन वो पेयर में यूज होता है विद रिस्पेक्ट टू द सिनेरियो दैट यू वांट टू डिलीवर, राइट. कनेक्टर्स गिव यू फ्लेक्सिबिलिटी ओवर हियर कि आप एक ही कंजंक्शन को बार बार ना यूज करके उसको फ्लेक्सिबल वे में यूज करो. दैट लुक्स वेरी 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 कनेक्टिव. Also, it makes or enhances your answers quality. ठीक है, चलो आगे बढ़ते देखते हैं how what exactly I mean when I say this. First of all, I'm going to talk about bifurcation, which is classification of connectors. सबसे पहला classification that I would like to talk to you is additive connectors. Now, what exactly is additive connectors? ठीक है, you can say additive connectors, whatever you feel like calling it. Now, additive connectors, these connectors introduce additional information or show similarity between the ideas. Additional information. जब हम कंजंक्शन की बात करते हैं ना, तो जब भी हम एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करते हैं, तो उसमें हम कौन सा कंजंक्शन यूज करते हैं? एंड यूज करते हैं. क्लियर, सॉर्टेड, अग्रीड. ठीक है, एंड यूज करते हैं. बट जब हम बात करते हैं कनेक्टर्स में, वी हैव कनेक्टर्स बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी सिचुएशन, जो कि आई विल बी टेलिंग यू विद इन सम टाइम. ठीक है, अब यहाँ पे देखो कॉमन एडिटिव कनेक्टर्स कौन कौन से हैं. बेसिक में अगर हम बात करें तो एंड है, ऑल्सो, टू, एज वेल, इन एडिशन. क्लियर. Furthermore, if I'm going to talk about the formal ones, we have moreover, furthermore, additionally. Not only that, what's more, these are some of the formal way that you can use in your IELTS examination. ये सबसे ज़्यादा use होने वाले connectors हैं when it comes to addition of the information. Academic, which is IELTS writing, besides, likewise, similarly in the same way. I hope this is clear. अगर अभी भी नहीं समझ आया है तो एक बार ये देख लो, आपको समझ में आ जाएगा आराम से. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. देखो यहाँ पे बेसिक की बात करते हैं. आई एन्जॉय रीडिंग एंड राइटिंग, कि मुझे रीडिंग भी पसंद है और मुझे राइटिंग भी पसंद है. सो व्हाट आई डिड, कि आपने नोटिस किया होगा, अगर आपने मेरे कंजंक्शन की क्लास करी होगी, तो मैंने आपको बताया था दैट व्हेन एवर यू आर यूजिंग एंड और व्हेन एवर यू आर यूजिंग कोरिलेटिव कंजंक्शन, उनकी जो ग्रामेटिकल, जो वर्ब की जो फॉर्म होती है, ग्रामेटिकल फॉर्म, वो हमेशा सेम होनी चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई एन्जॉय रीडिंग एंड राइट्स हम नहीं लिख सकते. राइट्स लिखेंगे तो गलत हो जाएगा. वाई? बिकॉज वी आर यूजिंग अ रॉन्ग ग्रामेटिकल फॉर्म विच इज नॉट एग्जैक्टली सूटिंग एंड इट इज नॉट अग्रीइंग विद द सब्जेक्ट एज वेल. राइट. नाउ I enjoy reading and writing. This is how it goes. And formal की बात कर ले तो the government has increased funding for education. Moreover, they have introduced new policies to improve learning. Moreover, यहाँ से आता क्या था? The government has increased. Government ने increase किया है funding education के लिए. Also, उसके साथ साथ या उसके addition में उन्होंने also introduce किया है नई policy to improve learning. Clear? अब एक academic writing का example देख लेते हैं. Both methods yielding similar results. Likewise, the second experiment confirmed the hypothesis. क्या मतलब हुआ कि बोथ मेथड, दोनों मेथड ने सेम रिजल्ट डिलीवर किए हैं सिमिलरली या लाइकवाइज या सेम तरीके से, जैसे कि जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट ने कंफर्म किया था अबाउट इट्स हाइपोथेसिस. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मेंशन. अब क्या करना है मैम, तो यहाँ पे ये करना है कि ये जो मैंने अभी आपको टर्म्स दिए हैं, ये जो आपको जितने भी टर्म्स दिए हैं,
either you're gonna note them down with you और यू हैव डेफिनेटली आपके पास नोट्स होंगे. आप हमारे PW एप्लीकेशन पे जाओगे, उसमें फ्री बैचेस, उसमें IELTS एंड TOEFL प्रेप पे क्लिक करोगे, उसमें फ्री बैचेस में जाओगे तो आपको IELTS फोकस मिलेगा. गेट योरसेल्फ एनरोल्ड इन दैट. डेफिनेटली इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट एंड यू कैन टेक द नोट्स फ्रॉम देयर इटसेल्फ. यू कैन डाउनलोड द नोट्स फ्रॉम देयर इटसेल्फ in which you're going to find all these words that I'm writing over here. Clear? You're going to use them in both of your modules, be it speaking, ठीक है, चाहे वो स्पीकिंग में आपको यूज करना हो फेयर इनफ और आपको राइटिंग में यूज करना हो फेयर इनफ, वट एवर सूट्स बेस्ट फॉर यू. क्लियर? ये समझ आ गया? आगे बढ़े. चलो, तो ये तो हो गया, ये हमारे एग्जाम्पल भी हो गया. अब हम बात करते हैं एडवर्सिटिव कनेक्टर्स की. क्या होता है एडवर्सिटिव? बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रास्टिव और कॉन्ट्राडिक्टरी कनेक्टर्स. These show contrast, opposition or contradiction between the ideas. अब मैम कॉन्ट्रास्ट कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है? तो देखो, कॉन्ट्रास्ट का मतलब जब दो अलग अलग ओपिनियन कोलाइड करती है, तो मैंने बताया होगा आपको कंजंक्शन वाली क्लास में, इफ यू अटेंडेड, तो जब हम बट की बात करते हैं तो दीज आर दोज वर्ड्स जो हमें बट येट से फेमिलियराइज कराते हैं. तो बट एंड येट तो हमारा बहुत बेसिक हो गया, जो हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में भी पढ़ते हैं, राइट. बट बात ये होती है कि अगर हम उसको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ यूज करना चाहें तो व्हाट ऑल अदर वर्ड्स वी कैन आल्सो यूज व्हेन इट कम्स टू आवर राइटिंग एंड स्पीकिंग in order to enhance the quality of our answer. So here you go. Formal में आता है nevertheless, nonetheless, conversely, whereas and while. Yeah, while is also a contradictory word. ठीक है. Academic IELTS writing की तरफ आ जाओ. On the contrary, on the contrast, alternatively, on the other hand, these are the words that you can use when it comes to the contradictory portion of your IELTS examination or of your opinion as well. ठीक है. अब देखो, बेसिक वाला सेंटेंस देख लें जरा. द टेस्ट वॉज डिफिकल्ट बट आई मैनेज्ड टू कंप्लीट इट. नॉर्मल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग सो फार. द न्यू पॉलिसी इज एक्सपेंसिव. जो हमारी नई पॉलिसी है वो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगी है. नेवरदलेस इट इज नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. जो हमारी नई पॉलिसी है वो है तो बहुत महंगी, तो महंगी होना इज अ नेगेटिव एस्पेक्ट, मतलब बहुत कॉस्टली है. वी माइट नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट. नेवरदलेस, हालांकि अगर हम इसको कंसिडर करें तो वो नेसेसरी भी तो है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, विच इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट. तो किसी चीज का नेसेसरी होना ग्रोथ के लिए इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट, बट उसका महंगा होना इज अ नेगेटिव एस्पेक्ट. दिस इज व्हाट वी हैव बीन डीलिंग विद. ठीक है, चलो अब बात करते हैं एकेडमिक लेवल पे. तो डेवलपिंग कंट्रीज फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर. In contrast, developed nation prioritize innovation. ये contrast क्यों आया? Contrast इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे हम developing country की बात कर रहे हैं, मतलब वो countries जो develop हो रही हैं, developing countries जो हो रही हैं. और contrast इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे हम already developed countries की बात कर रहे हैं, वो countries जो already developed हो चुकी हैं prioritize innovation के साथ. ठीक है, और दे प्रायोरिटाइज इनोवेशन, व्हाटएवर यू फील लाइक सेइंग. ठीक है, चलो ये समझ आ गया. अब बात करते हैं कैजुअल कनेक्टर्स की, जो कि बेसिकली हमें कॉज एंड इफेक्ट या रीजन या रिजल्ट बताते हैं. ठीक है, कैसे बताते हैं? यहाँ देख लो. दीज इंडिकेट्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. व्हाट दे इंडिकेट? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. ओके, चलो. सो क्या है कॉमन कैजुअल कनेक्टर्स? अब देखो, बेसिकली इसमें आप सिर्फ एक चीज की बात नहीं कर रहे हो, इसमें आप चार चीजों की बात कर रहे हो. ठीक है, तो वो चार चीज क्या है? बेसिकली देखो, इसमें आप बात कर रहे हो कॉज, इफेक्ट, रीजन एंड रिजल्ट. कि क्या रीजन था, मतलब क्या कॉज था उस इंसिडेंट के होने का, क्या इफेक्ट था, क्या रीजन था, क्या रिजल्ट था. यू आर टॉकिंग अबाउट 4 डिफरेंट सिनेरियोस. ठीक है, अब देखो बेसिक वर्ड्स की बात करें तो वी हैव गॉट सो, बिकॉज,
बिकॉज हमारा रीजन बताता है, सिंस भी रीजन बताता है, एज भी रीजन बताता है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना सिंस से, क्योंकि सिंस हमें टाइम भी बताता है, ठीक है, और हमें रीजन भी बताता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है क्योंकि टाइम विद रिस्पेक्ट टू द सिनेरियो, कैसे पता चलेगा वो टाइम बता रहा है कि सीजन बता रहा है? ये पता चलेगा विद रिस्पेक्ट टू द सिचुएशन यू आर डीलिंग विद रिस्पेक्ट टू द सिचुएशन यू आर मेकिंग द सेंटेंस, ठीक है। उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि वो टाइम बता रहा है कि वो रीजन बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फॉर्मल की बात करते हैं, therefore, thus, hence, consequently, as a result। एकेडमिक की बात करते हैं, due to, owing to, for this reason, accordingly, there are numerous words। इन सारे words को एक बार रिवाइज करना है, and then you have to come up with the usage of these words which are very 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 important, ठीक है। अब बोलोगे मैम हमें कनेक्टर्स आते नहीं है, हम कनेक्टर्स आते तो है, हम यूज नहीं कर पाते हैं। इसलिए नहीं यूज कर पाते क्योंकि आपको पता नहीं होता है किस जगह पे कौन से कनेक्टर यूज करनी है, ठीक है। हमें बस वही पता है, हमें एंड यूज करना है, बट यूज करना है, क्या बड़ी बात है, हम एंड यूज कर लेंगे, बट यूज कर लेंगे, बिकॉज यूज कर लेंगे, दैट्स ऑल, दैट्स द एंड ऑफ द गेम। नो, दैट्स नॉट द एंड ऑफ द गेम। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल इनफ। अब जब मैं बोलती हूँ फ्लेक्सिबल 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 क्यों बोलती हूँ मैं? You have to be flexible when it comes to vocab, when it comes to synonyms, when it comes to the connectors, and when it comes to the conjunctions. It's really, really, really important. Now, come over here. Basics. She was late because of the traffic. वो late हुई क्योंकि traffic था. Normal, simple, सादा statement, ठीक है? The demand of electric car is rising. Electric car की जो demand है वो rise हो रही है. क्यों? Manufacturers are investing in new technology. Therefore, for that reason or reason being, manufacturers जो है वो invest कर रहे हैं नई technology पे. Due to climate change, sea levels have risen significantly. Due to, for a reason of the climate change, sea levels have risen significantly. बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू कंसिडर। अब कैसे करना है, क्या करना है, देखो आई कैन ऑल्सो टेल यू, वंदना मैम आपको बता ही रहे हैं। सो जस्ट टू बी वेरी श्योर एंड जस्ट टू बी ऑन द क्लियर साइड, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट जब भी आप ऐसे लिखो या स्पीकिंग करो, मेक श्योर यू कीप दीज वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ यू हमेशा, क्योंकि देखो in order to memorize, or sorry, not memorize actually, in order to remember or in order to use these words, it is really important for you to memorize them first. याद होगा तभी तो यूज़ करोगे, याद नहीं होगा तो यूज़ कैसे करोगे? और अगर याद होता अभी तक तो यूज़ कर लेते, तो यूज़ कर नहीं पा रहे मतलब याद नहीं है, ठीक है। तो इसको कंसिडर कैसे करना है, इसको यूज़ करना है। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, लैंग्वेज में कभी भी आप देखो किसी चीज़ को रट नहीं सकते हो, जैसे मैथ्स में नहीं रट सकते हो ना, वैसे इंग्लिश में नहीं रट सकते हो। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। रटने को तो चलो रट लो, I'm not talking from the IELTS perspective, I'm not talking about any of the English proficiency test के perspective, I'm just talking to you with respect to English के perspective as a language, कि अगर आप कल को रट भी लोगे तो चाहे आप अपने स्कूल के एग्जाम में बैठो, चाहे कॉलेज के एग्जाम में बैठो, चाहे यूनिवर्सिटी के एग्जाम में बैठो, चाहे आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम में बैठो, वो चीज़ आपको काम नहीं आने वाली है, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी नर्वस एंड दैट्स अ नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी। होता है, इट्स ओके, एंड दैट्स नॉट समथिंग यू नीड टू बी ashamed of, ठीक है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि इसको कंसिडर करो। कैसे कंसिडर करोगे? याद नहीं करना है, अप्लाई करना है। जब आप पैराग्राफ लिखते हो, जब आप ऐसे लिखते हो, आपको पता है कि मुझे यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, प्लान करते हो ना, करते हो प्लान, नहीं करते हो तो शुरू कर दो करना। प्लान करते टाइम पे यू मेक पॉइंटर्स, पॉइंटर्स आपके बुलेट पॉइंटर्स में होते हैं, उन बुलेट पॉइंटर्स को ऐसे में एज अ पैराग्राफ लिखना होता है। सो डेफिनेटली इनकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, क्यों नहीं पड़ेगी? और इनकी ज़रूरत अगर नहीं पड़ रही है तो यू आर नॉट डूइंग इट राइट, आप सिर्फ एंड एंड बट में रह जा रहे हो। दे आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, आई एम सेइंग दे आर इम्पॉर्टेंट डेफिनेटली, उनके साथ साथ पंक्चुएशंस भी इम्पॉर्टेंट है, सब इम्पॉर्टेंट है। But at the same time, what is more important is your flexibility with respect to connectors, your flexibility with respect to conjunctions, your flexibility with respect to synonyms and vocabularies.
कि आपको एग्जामिनर आपका आंसर पढ़ने के बाद ये ना बोले कि अरे इसको तो बस इतना ही आता है, इससे ज़्यादा तो इसको आता ही नहीं। इसको कनेक्ट करने के लिए एंड ही आती है, इसको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए इसको सिर्फ बट ही आता है। टेल दैट एग्जामिनर दैट नो, आई नो हाउ टू बी डाइवर्सिफाइड व्हेन इट कम्स टू अ लैंग्वेज एंड स्पेसिफिकली इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, आई होप इतना लेक्चर काम करेगा तुम लोग के लिए। नहीं कर रहा है तो पढ़ाई करना शुरू कर दो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सीक्वेंशियल कनेक्टर्स विच मीन टाइम सीक्वेंस कनेक्टर्स। अब देखो, these indicate the sequence of what? Events, steps और points in time। क्या क्या है? बेसिक की बात करें तो फर्स्ट, नेक्स्ट, देन, फाइनली, बस हो गया खत्म। फॉर्मल की बात करें सब्सीक्वेंटली, thereafter, इनिशियली, एट लास्ट। वो सुना होगा मीम, इन द beginning, that is also something that you can use। ठीक है, now to begin with, in the first place, in conclusion, eventually। तो ये हो गई एकेडमिक राइटिंग, आइल्स राइटिंग के पर्सपेक्टिव से, ये हो गया आपके फॉर्मल राइटिंग के पर्सपेक्टिव से, ये हो गया आपका बेसिक पर्सपेक्टिव से। ठीक है, अब सेंटेंसेस देख लो। फर्स्ट वी वेंट फॉर शॉपिंग, एंड देन वी हैड डिनर, एंड देन शोज दैट पर्टिकुलर टाइम कि उस इंसिडेंट के बाद हमने क्या करा था। ठीक है, फॉर्मल की बात करें, द कंपनी एक्सपैंडेड टू यूरोप, देयर आफ्टर इट एंटर्ड टू एशियन मार्केट। एकेडमिक, initially the experiment showed mixed result, but eventually it confirmed the hypothesis। यहाँ पे initially is used in order to show the first step and eventually is used in order to show the result, which means the last part as this is the outcome, as an outcome। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। बढ़िया, ऑल गुड, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो समझना शुरू कर दो। ठीक है, चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलस्ट्रेटिव कनेक्टर्स। व्हाट आर इलस्ट्रेटिव कनेक्टर्स? क्या होते हैं इलस्ट्रेटिव कनेक्टर्स? These introduce examples, clarification or explanation। Now common illustrative connectors, basic में for example, for instance, like, such as। अब अगर मुझे किसी के मुंह से सुनने आया कि मैम मेरे पास कनेक्टर्स नहीं है, फिर देखना तुम लोग, I'm giving you enough connectors that you can आराम से use it in your IELTS examination and score as much as you can। Definitely 9 तक ही score करोगे, उससे ज़्यादा तो नहीं कर पाओगे। तो the fact is कि अब कोई बोलना नहीं, because I have bifurcated in with respect to each and every category that it needs to। Also I'm giving you all the kind of connectors, so just make sure you note them down somewhere। नोट करो, प्रिंट आउट निकालो, प्रिंट आउट नहीं निकाल पा रहे हो उसको लिख लो कहीं पे। whatever you need to do, just make sure you keep them somewhere so that whenever you need them with respect to time, contradiction, addition, sequence, you should have them and you should not hesitate to use them। ठीक है, चलो, namely, specifically, in particular, to illustrate। Now academic, that is to say, to clarify or to be specific। Yeah, many countries such as Canada and Australia have high immigration rate, such as, like, जब आप example देते हो majorly, ठीक है, some animals, namely tigers and lions, are classified as endangered। Academic, assesses different skills to clarify, it evaluates listening, reading, writing and speaking। Yep, all good, सब बढ़िया, सब समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत परेशानी किसी को, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। आई एम देयर। एंड एकेडमिक परेशानी की बात कर रही हूँ, पर्सनल परेशानी की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, हाँ, गुड, चलो। Now let's talk about comparative connectors, जो कि हमें comparison बताते हैं, similarities बताते हैं, जो कि आपने अभी additional वाले में भी similarities पढ़ी है, but ठीक है, यहाँ पे भी you can just consider it। ठीक है, these indicate comparison or similarity between the ideas। Common comparative connectors, like, similarly, in the same way, as well as, likewise, correspondingly, comparatively, and analogues to, in like manner and equally। Yeah, now she speaks Spanish like a native speaker। The economy of both countries has grown
Likewise, their trade relations have strengthened. The impact of globalization has analogous to the Industrial Revolution. So this is how we are going to present the comparative one. जहाँ पे ज़रूरी है comparative word की वहाँ comparison डालो, जहाँ पे ज़रूरी है similar word की वहाँ similarity डालो. Whatever you think with respect to the pointer you have made, with respect to the planning you have done, उसके हिसाब से यू हैव टू कम अप विद द कनेक्टर्स एज वेल एज जब भी प्लानिंग कर रहे हो, कब अगर हो पाए तो अगर आप कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंटर्स ले रहे हो या सिमिलर पॉइंटर्स ले रहे हो या कोई ऐसा पॉइंटर ले रहे हो जिसमें आपको एग्जाम्पल देने की ज़रूरत है, तो मेक श्योर कभी अगर टाइम है तो उसके साथ साथ कनेक्टर्स भी लिख लो, सो दैट जब आप आंसर लिखो तो आपको कनेक्टर्स पे उतना ज़्यादा फोकस ना करना पड़े, प्लानिंग में ही सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाए. क्लियर? सो यू हैव मल्टीपल वेज इन विच यू कैन कम अप विद द प्रॉपर आंसर. ठीक है, चलो. नाउ concessive connectors which is contrasting unexpected results. ये क्या है मैम? देख लो इधर, देखो पता चल जाएगा. These introduce an unexpected outcome or concession. क्या है? Although, though, even though, and while. Despite, in spite of, regardless, and then we have albeit, not, withstand, and then let's talk about the examples. Although it was raining, हालांकि बारिश हो रही थी, तब भी हम वॉक पे गए. क्यों? क्योंकि हम तो मानेंगे नहीं, हमें तो बारिश में घूमना पसंद है. तो इवन दो बारिश हो रही थी, हालांकि बारिश हो रही थी, तब भी हम वॉक पे गए. हम जिद्दी हैं, हम जाएंगे. ठीक है, चलो. Despite being well prepared, he struggled in the interview. हालांकि उसने प्रिपेयर बहुत करा था, बट स्टिल वो इंटरव्यू में स्ट्रगल करा. क्यों? क्योंकि इंटरव्यू में वो सारे क्वेश्चंस नहीं आते जो आप प्रिपेयर करके जाते हो, एक्सपेक्ट करके जाते हो. ठीक है, दैट्स अ फैक्ट. द प्लान वाज इफेक्टिव नॉट विथस्टैंड सम इनिशियल चैलेंजेस. क्लियर? चलो आ जाओ कंडीशनल कनेक्टर्स पे, जहाँ पे हमको कंडीशन बतानी होती है. मस्ट बी मेट फॉर एन आउटकम, दैट मस्ट बी मेट फॉर एन आउटकम टू अकर. ठीक है, बात करते हैं देखो कुछ कॉमन कनेक्टर्स, कुछ कॉमन कंडीशन कनेक्टर्स की. तो ये है यहाँ पे बेसिक, इफ अनलेस प्रोवाइडेड दैट एज लॉन्ग एज. अब हम बात करते हैं फॉर्मल की, इन केस सपोजिंग ऑन कंडीशन दैट, एंड एकेडमिकल्स की बात करते हैं, गिवन दैट, अज्यूमिंग दैट एंड कंटिंजेंट अपॉन. गिविंग दैट, अज्यूमिंग दैट, कंटिंजेंट अपॉन. अब यहाँ पे देखो कंडीशन का मतलब क्या होता है? कंडीशन का मतलब होता है कि अगर आप ये इंसिडेंट करोगे तो इसका आउटकम ये निकलेगा, तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा. ठीक है, तो दीज आर द वर्ड जो हम कंडीशन के लिए यूज करते हैं, कॉमन कंडीशनल कनेक्टर्स. नाउ एग्जाम्पल देख लो. यू वॉन्ट पास अनलेस यू स्टडी. अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो पास नहीं होगे, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो बैंड्स नहीं आएंगे. एंड दैट्स अ फैक्ट. ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, एग्जाम्पल मैंने जेन्युइनली लिया है. ठीक है, तुम लोग को बताने के लिए कि पढ़ाई शुरू कर दो, पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ यू विल नॉट स्टडी, इफ लगाया मैंने, कंडीशन आया उधर भी. इफ यू विल नॉट स्टडी यू विल फेल, और यू वॉन्ट पास अनलेस यू स्टडी, दोनों सेम एग्जैक्ट. इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी फॉलो द इवैक्यूएशन प्लान. इन केस ऑफ, अगर कोई इमरजेंसी पड़ी तो इवैक्यूएशन प्लान को फॉलो कर लेना. Given that the economy is recovering, consumer confidence is expected to rise. Given that, हालांकि दिया हुआ है इकोनॉमी इज रिकवरिंग, इकोनॉमी रिकवर कर रही है, स्टिल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इज एक्सपेक्टेड टू राइज. समझ में आ रहा है? चलो इधर आओ, जल्दी से आ जाओ. पर्पस कनेक्टर्स की बात करते हैं. क्या है पर्पस कनेक्टर? ये शो करते हैं द रीजंस फॉर एन एक्शन और द पर्पस बिहाइंड इट. एक एक्शन के पीछे का रीजन और जो पर्पस था, कैसे? सो दैट टू फॉर, फॉर्मल क्या है? इन ऑर्डर टू, फॉर दैट पर्पस ऑफ, और क्या एकेडमिक में विद द एम ऑफ, विद द व्यू टू. बेसिकली ये हम यूजुअली यूज करते हैं बहुत ज्यादा फॉर्मल लैंग्वेज में, विद एन एम ऑफ. ठीक है, बहुत ज्यादा फॉर्मल लेवल पे यूज करते हैं, बट स्टिल टू ऑल द पीपल हु आर गोइंग फॉर जनरल ट्रेनिंग एंड हु आर गोइंग फॉर लेटर राइटिंग, दे कैन यूज दीज. ठीक है, चलो. She studies hard so that she can pass the exam. The company introduced flexible hours in order to improve productivity. क्यों करा है? कंपनी ने इंट्रोड्यूस करा है फ्लेक्सिबल आवर्स. क्यों? किसने बोला था? क्या जरूरत थी? इन ऑर्डर टू, किसी चीज को इंप्रूव करने के लिए. क्या? प्रोडक्टिविटी. समझ आ रहा है?
The new policy was implemented with the aim of reducing unemployment. The new policy was implemented. जो भी new policy implement हुई थी वो किस aim से implement हुई थी? ताकि वो unemployment को reduce कर सके. For a reason. With the aim. Getting it? चलो आगे बढ़ जाएं. नाउ समेटिव कनेक्टर्स क्या होते हैं समेटिव कनेक्टर? जल्दी बता दो. समराइजिंग एंड कंक्लूजिंग. देखो ये बेसिकली आपको यूज होगा जब आप ऐसे लिख रहे होगे. ठीक है, अभी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे किसी सेशन में. ठीक है, क्योंकि ऐसे तो समझ में आने वाला नहीं है तुम लोग को. अब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट अभी सिर्फ इतना देख लो. ठीक है, इन शॉर्ट, इन समरी, टू कंक्लूड, to sum up in brief and overall, so yeah, all things considered, taking everything into account or consideration. In short, practice is key to success. To sum up, technological advancement have revolutionized communication. Taking everything into account, online education has been benefits and has both benefits and drawbacks. I'm sorry. ठीक है, चलो. So yeah, how to use connectors effectively in IELTS writing and speaking. कैसे करना है? जल्दी बात कर ले इसके बारे में. बोर तो नहीं हो गए तुम लोग? अब हो भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है. अगर किसी ने बोला मुझे कि मैम मेरे पास कनेक्टर्स नहीं है, मैम बता दीजिए कनेक्टर्स कैसे पढ़ाई करे, तो कनेक्टर्स फिर बताऊंगी मैं. देख लो यहाँ पे. ठीक है, सबसे पहले तो अवॉइड रेपिटेशन. देखो जिसके लिए आई एम टीचिंग यू कनेक्टर्स, for a reason that I'm teaching you connectors, one of the biggest reason is the repetition that you keep on doing. तो repetition को avoid करने के लिए use a variety of connectors to enhance coherence. That is what I said, right? Use formal connectors in writing. IELTS writing requires a formal tone. Avoid informal tone like plus and so in task 2. समझ आ रहा है? आंखें देख लो ऐसे, आंखें खोल के. यही गलती करके मत आ जाना तुम लोग. Practice fluency in speaking. Use natural connector like well, to be honest, or actually, I believe that. Okay, next. Ensure logical progression. Connectors should help structure your ideas logically. So yeah, this is how you are going to use connectors effectively in IELTS writing and speaking. ठीक है? To all the students जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि वो DPPs कहाँ पे जाएं, प्रैक्टिस कैसे करें, मैम आप जो पढ़ा तो रही हैं लेकिन उसकी प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो डेफिनेटली यू कैन गो टू आवर IELTS, यू कैन गो टू आवर PW एप्लीकेशन. ठीक है, एप्लीकेशन पे गए, फिर क्या करना है, IELTS एंड TOEFL प्रेप पे क्लिक करा. IELTS एंड TOEFL प्रेप पर क्लिक करा तो आपको क्या मिलेगा. अब आप जाओगे बैचेस में. ठीक है, बैचेस में जाके यू कैन गो फॉर IELTS 0 to Hero, जहां हम आपको 0 से हीरो बनाते हैं. ठीक है, IELTS 0 to Hero बैच, वहां पे यू कैन गेट दीज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड यू कैन गेट द DPPs एज वेल. इसके साथ आपको DPPs भी मिलते हैं अटैच, जहाँ पे विच इज डेली प्रैक्टिस पेपर्स. तो डेली आपको प्रैक्टिस करना होता है, बिना प्रैक्टिस किए देखो कुछ नहीं मिलता है. आई एम टेलिंग यू अगेन. सो इफ यू वांट to aim a really good band score, definitely 8+, then please go for connectors in order to improve your cohesion and coherence, which is again, I would not say the only important, but yes, one of the most important kind of parameter in which you need to be a bit careful. So yeah, thank you so much everyone. Thank you so much for being here. It has been a wonderful session with you all and I hope that this is going to help you a lot. And जो भी problem हो, कोई भी doubt हो, कोई भी question हो जो नहीं समझ में आया, please drop it down in the comment section so that I can visit and solve all your queries. And all the very best to all the students who are preparing for their IELTS examination. Bye bye, take care, we'll see you in the next session. Bye.